Hello everyone. Today we are going to discuss the Quit India movement and the CRIPS mission, important MCQ questions. All right. So we'll be discussing the MCQ from this chapter and we'll be discussing the major MCQ questions. जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि कंपलसरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आए या फिर ये भी कंपलसरी नहीं है कि इनमें से क्वेश्चंस आए ही आए. मे बी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चंस ना आए, बट द थिंग इज with the practice of these questions or practice of questions, simply जब आप questions practice करते हो, so you develop the critical thinking. Fine. अब अपनी critical thinking को improve करते हो, it enhances your critical thinking and you'll be able to answer the questions. You'll be able to think, you'll be able to approach the question in a particular way which you have learned through practicing these many questions. What matters is the way you think, the way you practice and the way you approach. ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अच्छी बात है. इट इज गुड दैट यू आर प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस, बट डू नॉट फोकस मेनली ऑन द क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चंस. प्रैक्टिस मेनली ऑन द वे और द अप्रोच or your approach, the way you are approaching to that particular questions. So let's get into the video. So this is your first question. The question is, where was the third roundtable conference held? Third roundtable conference कहाँ होता है? Tell me the answer. Options are France, Germany, England, London. Tell me the answer fast. क्या होगा इसका आंसर? The answer will be option A, B, C, D. What will be the answer? आंसर क्या होगा? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा. So guys, the right answer will be, yeah, definitely option D, that is London. Moving on to next. Why had the Congress ministers resigned towards the end of October 1939? कांग्रेस मेंबर्स ने क्यों रिजाइन कर दी थी अक्टूबर 1939? अक्टूबर एंड में 1939 के अक्टूबर के एंड में, ऑलराइट, इस ईयर में क्यों कांग्रेस के मेंबर्स ने रिजाइन कर दी थी? Your options are because the Muslim League supported the government without even consulting with the Congress. Next, because the government had involved India in a war without consulting the central legislature and provincial government. Moving on to the third part, because the Britishers failed to satisfy the Congress leaders as there was no time limit within which the constitution making body was to be set up, and lastly both A and C. So जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ, आपको इसका आंसर कौन सा सही लगता है, कौन सा एप्रोप्रिएट लगता है. So yes guys, you're absolutely right. The correct answer will be option B. Because Britishers ने इंडिया को एक बैटल में, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि वो कौन सी वॉर थी या फिर वो कौन सी बैटल थी जिसमें ब्रिटिशर्स ने बिना इंडिया की मर्जी के, बिना सेंट्रल लेजिस्लेचर या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, बिना पूछे इंडिया को वॉर में शामिल कर लिया था. So you have to tell me in comments कि ये कौन सी वॉर की बात है. फाइन. और यहाँ पे जो आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन है, लास्ट वाला जो ऑप्शन है, आई मीन थर्ड वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, इसमें जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये किस चीज का है. ये वाला स्टेटमेंट है रिजेक्शन ऑफ ऑगस्ट ऑफर. आपने पढ़ा होगा बुक में ऑगस्ट ऑफर के बारे में. ऑगस्ट ऑफर क्यों रिजेक्ट हुआ था? फाइन. ऑगस्ट ऑफर क्यों रिजेक्ट हुआ था बताओ. ऑगस्ट ऑफर इसलिए रिजेक्ट हुआ था because there was no time limit within which the constitution making body was to be set up. गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया था कि कब तक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, कब तक उसे सेटअप किया जाएगा या फिर कब तक अपॉइंट किया जाएगा. सो दिस वाज द रीजन, this was the reason, I'm very sorry, this was the reason why the August offer was rejected by the Congress. Fine. So फिर से एक बार देख लो, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. Moving on to next, the August offer was made by whom? अभी just we were talking about August offer and we came to the August offer. किसने August offer रखा था सामने? Lord Wellington, Lord Linlithgow, Lord Irwin or Lord Minto? So the right answer will be option B, Lord Linlithgow. Fine, option B. Moving on to next. Now we are moving on to the next question.
When was the August offer made? August offer कब उसे सामने रखा गया था? Tell me the answer. Your options are 15th of May 1938, 26th of April 1945, 8th of August 1940, and lastly 2nd of October 1935. So tell me the correct option. आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है? Tell me in comments. Come on, hurry up, students. You have very less time. Video ज्यादा लंबी नहीं है, but still you have very less time. You have to study very hard. तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? Tell me the answer. अगस्त लिखा है यार, कॉमन सेंस यूज करो. अगस्त ऑफर है, अगस्त में ही होगी. सो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 8 ऑफ अगस्त 1940. डेट और ईयर याद रखना. फाइन, डेट और ईयर का आपको प्रॉपर ये सबको रिमेंबर करना है, आपको ये सब याद रखनी चाहिए. फाइन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, और यू कैन कॉल इट ऑप्शन थर्ड. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. व्हेन वाज अ क्रिप्स प्रपोजल्स मेड? क्रिप्स प्रपोजल्स कब सामने रखी गई थी? 1938 में, 1942 में, 1940 में, या फिर 1945 में? टेल मी द आंसर फास्ट. इसका आंसर क्या होगा? ABCD जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा. फाइन, सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ. यू हैव वेरी लेस टाइम. आई एम काउंटिंग 5, 1, 2, 3, 4 and 5. So yeah, your correct option is option B, 1942. Fine, 1942. That is option number B. Now moving on to the next question. Question number 6. Which session of league had set a definite demand for partition of India? जो लीग है, लीग मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ पे जब भी मैं लीग लिखूंगी या फिर क्वेश्चन में जब भी लीग आएगा, आप क्लियरली समझ लो कि ये मुस्लिम लीग को इंडिकेट कर रहा है. क्लियर? सो मुस्लिम लीग के कौन से सेशन में ये उन्होंने अपना डिमांड, यानी कि उन्होंने अपना ऑब्जेक्ट, उन्होंने ये सेट कर लिया था ये डिमांड कि उन्हें पार्टीशन ऑफ इंडिया ही उनका डिमांड है, उन्हें पार्टीशन ऑफ इंडिया करवाना है हर हालत में. उन्होंने कौन से सेशन में ये डिसाइड किया था या फिर ये डिमांड को सेट किया था? सो इन द कोलकाता सेशन, इन आगरा सेशन, मुंबई और इन लाहौर? टेल मी द आंसर इन कमेंट्स. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा. ABCD. टेल मी फास्ट. So absolutely guys, इसका आंसर होगा option 4, that is Lahore. Right? Now moving on to next. Now we are moving on to question number 7. When was a Quit India resolution adopted by Congress Working Committee? Congress Working Committee ने Quit India resolution कब adopt की थी? अभी तक वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है. इट इज ओनली द मैटर ऑफ एडॉप्टेशन. कब उसे एडॉप्ट किया गया था, कब उसे कंसिडर किया गया था, मतलब अब उसके बारे में डिस्कशंस होंगी. कब इस मामले को सामने रखा गया था कमिटी के अंदर, कब इस रेजोल्यूशन को लाया गया था. फाइन, सो ऑप्शंस क्या आपके पास? 1940, 1938, 1945 and 1942. So tell me the answer in comments. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर आपको कौन सा सही लगता है. ABCD क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ. सो यस गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, 1942. बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी अकरेंस है इस चैप्टर में, वो मेनली 1942, 1940 यही सारे डेट्स में होते हैं. सो ये सब याद रखना कि ये वाले चैप्टर से क्वेश्चंस बनेंगे तो यही सारे कॉमन डेट्स होते हैं. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8. When was a Quit India resolution passed? अब आई ना क्वेश्चन, अब आई कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कब पास हुई थी. लास्ट में हमने बात की कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कब एडॉप्ट किया गया था. अब हम बात करेंगे कब ये पास हुई थी. ऑप्शंस आर 15th of August 1943, 8th of August 1942, 20th of July 1945 और 30th of April 1938. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ आपको इसका आंसर कौन सा सही लगता है. जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा. मैंने आपको ऑलरेडी एक हिंट दे दी थी लास्ट वाले क्वेश्चन में कि मेनली इसमें 1942 में रहता है, बट ये मत कंसिडर करना कि सारे हर चीज जो भी है वो 1942 में ही होगा. ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. आपको डेट्स याद रखने पड़ेंगे. डेट्स याद करो, डेट्स याद करो, मतलब करो, करना ही पड़ेगा आपको डेट्स याद, वरना फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. सिंपल सी बात, डेट्स पढ़ना होगा, हिस्ट्री है. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 of August 1942. कहीं पे डेट लिखते चलो. यू शुड पेन डाउन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सारे क्वेश्चंस को लिखते चलो ताकि बाद में रिवीजन में काम आए,
वरना फिर बाद में आप बोलोगे कि पीडीएफ दो, ये करो, वो करो, स्क्रीनशॉट लो, ये करो। अभी अगर टाइम है तो यार लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। अभी आपका कल एग्जाम है, अभी आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखोगे ताकि आपके सेमेस्टर 1 में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड इट्स नेसेसरी कि आप अभी से नोट्स बनाना प्लस क्वेश्चंस लिखना शुरू करो। इट इज द ओनली की टू गेट सक्सेस और टू गेट गुड मार्क्स, राइट? नेक्स्ट थिंग इज, why did the Muslim League rejected the Cripps proposals? Cripps proposal को Muslim League ने क्यों reject किया था? What was their reason? Because they did not assure, did के साथ भी use a present tense, so it will be assure. They did not assure that the viceroy would act as constitutional head, right? Because they did not promise the immediate creation of Pakistan. We don't need any other option. Simple सा ये वाला option होगा सही, राइट? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उनका इमीडिएट गोल क्या था। दे वांटेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया और द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। एंड लास्ट वाला भी देख ही लेता है, बिकॉज दे वर इन नॉट सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। तो ये कोई सेंस नहीं बनता। फाइन, समझ में आपको? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, choose among the following the reason for the failure of Quit India movement. Quit India movement क्यों फेल हो गई थी? What was the reason behind its failure? Lack of coordination, lack of involvement of all sections of society. That means जो सोसाइटी के हर सेक्शन के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। कुछ लोग अभी भी गवर्नमेंट की तरफ लॉयल थे, फाइन, तो वो इस मूवमेंट में अपना योगदान नहीं दे रहे थे। गवर्नमेंट पनिश्ड रेजिस्टेंट रथलेसली, फाइन, बहुत ज्यादा ब्रूटल थी। जो भी पकड़ाता था उसे बहुत ब्रूटली उसके साथ ट्रीटमेंट हुआ था। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल द अबव। Fine. Moving on to question number 11. What had the Congress desired until the new constitution was framed? जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तब तक कांग्रेस क्या चाहते थे? उनकी क्या डिमांड थी? वो क्या चाहते थे मेनली? The Viceroy should act as constitutional head, to join Viceroy's executive council, the abolition of Cripps mission, all the above. So इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से सोच समझ के मुझे बताओ, इसका आंसर आपको क्या लगता है? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक वो क्या चाहते थे? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा यस, वेरी गुड, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द वाइसरॉय शुड एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। फाइन। नेक्स्ट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट इज आल्सो नोन एज, बहुत कॉमन और रेडिली आस्क्ड क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन आंसर में भी दिया हुआ है। मैं मेंशन करना चाहती हूँ यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सो क्या होगा? क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या कहा जाता है? द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑफ 1942, नो। मास अपराइजिंग ऑफ 1942, मे बी। सेकेंड वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, डोंट नो। एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। So yes, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मास अपराइजिंग ऑफ 1942। फाइन, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, what was the purpose of the proposals drawn up by the government after the third round table conference? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो गवर्नमेंट, उसके बाद जो गवर्नमेंट में कुछ प्रपोजल्स रखे, कुछ प्रपोजल सामने रखे, फाइन, उन्होंने कुछ प्रपोजल्स मार्क आउट किए। इस प्रपोजल्स का क्या मतलब था, या फिर ये प्रपोजल्स किस रीजन से रखे गए थे, उसका मेनली क्या पर्पस था? फॉर द रिमूवल ऑफ द इंडियन कांग्रेस, for the creation of all India campaign, for the reform in the Indian government, none of the above. आपको इसका आंसर कौन सा सही लग रहा है? जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। सो यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फॉर द रिफॉर्म ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट, अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट चलो यार, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, मैंने कोई और क्वेश्चन समझ रहा था। बट आपको समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया कि गवर्नमेंट ने जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद कुछ सेट ऑफ प्रपोजल्स मार्क आउट किए, जॉट डाउन किए। सो इसका क्या पर्पस था, क्या ऑब्जेक्टिव से? बिकॉज वो चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट में कुछ रिफॉर्म्स वो डालना चाहते थे। फाइन। नेक्स्ट इज, when did the government of India receive the royal assent? रॉयल असेंट दैट मींस ब्रिटिशर्स से, या फिर रॉयल असेंट मतलब उनको फाइनली जो अप्रूवल कब मिला, फाइन, कंसिडरेशन कब मिला, ये फाइनल असेंट कब मिला? सो योर ऑप्शंस आर 15th of April 1942,
4th of August 1935, 30th of March 1948 and 12th of July 1932. So इसका आंसर क्या होगा? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा? जल्दी से बताओ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4th of August 1935. Moving on to next. What was the most significant aspect of the Government of India Act? Government of India Act का सबसे significant है, सबसे ज्यादा important aspect क्या था? The provision of provincial autonomy, abolition of the League, Joint Congress Government Committee, both A and C. ए और आई मीन सी के बारे में तो ऐसा कुछ मेंशन है नहीं आपके बुक में, एबॉलिशन ऑफ लीग ऐसा भी कुछ नहीं था। सिंपल सा क्लियर कट इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द प्रोविजन फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्लियर? Next one is, by whom was a campaign of individual civil disobedience launched? किसने civil disobedience इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च की थी? आपने पढ़ा होगा आपके बुक में इंडिविजुअल सत्याग्रह। सो आपने ये भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है कि सिविल डिसोबीडियंस इज अ फॉर्म ऑफ सत्याग्रह। सो सिविल डिसोबीडियंस किसने लॉन्च की थी? इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने लॉन्च की थी? महात्मा गांधी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, कांग्रेस लीग। और सबसे पहला सत्याग्रही कौन था? बताओ मुझे कमेंट करके, सबसे पहला सत्याग्रही कौन था? इंडिविजुअल सत्याग्रह का सबसे पहला सत्याग्रही कौन था? विनोबा, VINOBA, इट्स विनोबा। फाइन, याद रहेगा आपको कभी अगर ये पूछ लिया ये क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह। फाइन, याद रहेगा। चलो आगे मूव करते हैं। What was the main reason of Gandhi to urge the Congress Working Committee to reject the Cripps proposal? गांधी जी को ऐसी कौन सी बात खटक रही थी क्रिप्स प्रपोजल की कि उन्होंने कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कांग्रेस को कन्विंस किया कि यार क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दो, हमें इसे अप्रूव नहीं करनी चाहिए। इट कुड डिवाइड इंडिया इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इट डिवाइड्स सेल्फ गवर्नमेंट स्टेटस फॉर इंडिया। उसका जो फर्स्ट वाला जो प्रपोजल था उसमें लिखा हुआ था सेल्फ गवर्नमेंट स्टेटस, इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट स्टेटस या फिर डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए ही ये प्रपोजल रखी गई थी। फाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि उन्होंने डिनाई किया था, उल्टा उन्होंने ये कहा था कि विल ट्राई टू और वी विल प्रोवाइड, मतलब उसमें लिखा था कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट स्टेटस मिलेगी। फाइन, द कम्युनल प्रॉब्लम्स वर वर्सनिंग, ये कोई रीजन नहीं बनता। So the right answer will be option A. It could divide India into a number of independent states. Clear? Moving on to next. Where had the Congress Working Committee met in July 1942? देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है इंपॉर्टेंट। बताओ कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जुलाई 1942 में कहाँ पे मिले थे? महीना भी दिया हुआ है, साल भी दिया हुआ है, लाहौर में, कोयम्बतूर में, वर्धा, अवध, क्या होगा इसका? मैं एक चीज आपको हिंट देना चाहती हूँ, तो जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। चलो इस हिंट के माध्यम से मुझे बताओ कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ABCD क्या होगा? जल्दी से बताओ मुझे, क्या लगता है आपको इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से बताओ, ABCD क्या होगा? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके, इसका आंसर आपको क्या लगता है क्या होगा? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धा। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी, वर्धा। Moving on to question number 19. When did Sir Stafford Cripps come to India? Did के साथ again present tense. So where did Sir Stafford Cripps come to India? वो कब आए थे? अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो नहीं दे सकता है, बट अगर आ गया तो क्या करोगे? Then what will you do? क्वेश्चन आंसर में भी आपका जो बुक में आपको जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें भी ये दिया हुआ है कि वो किस रीजन से आए थे और टाइम भी दिया हुआ है कि वो इस टाइम पे आए हुए थे। राइट, उसमें टाइम दिया हुआ है, उसमें ईयर दिया हुआ है और मंथ दिया हुआ है कि वो इस टाइम पे आए थे। अब वो किस रीजन से आए थे ये बताओ, तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि कब आए थे। फाइन, तो वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट एनी पोर्शन ऑफ द चैप्टर, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज आफ्टर ऑल ये सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जामिनेशन होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी द टफेस्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इट मे बी द इजीएस्ट ऑफ ऑल और इट can be the toughest of all. Let's see what happens, we'll see. So first option है अगस्त 1940 में, अप्रैल 1938 में या फिर मार्च 1945 and last one is none of the above. So जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको इसका आंसर कौन सा लगता है, जल्दी से बताना। ABCD क्या होगा? जल्दी से तुक्का मारो या कुछ भी करो, जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। मुझे बस आंसर चाहिए, मुझे बस आंसर चाहिए।
मुझे बस बताओ इसका आंसर क्या होगा। ABCD क्या होगा, जल्दी से बताओ। ABCD क्या होगा, जल्दी से बताओ। ABCD क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसमें से कोई भी ऑप्शंस नहीं आ रहा है, राइट? तो नन ऑफ द अबव होगा। कितने बच्चों ने कहा था नन ऑफ द अबव? कितनों ने कहा था, जल्दी से बताओ। अगर नन ऑफ द अबव है तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी आपको बताना होगा। चलो बताओ मुझे, इसका आंसर क्या होगा? अगर नन ऑफ द अबव है तो इसका आंसर क्या होगा, और अगर नन ऑफ द अबव नहीं है तो कौन सा सही है? चलो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। इतना क्या सोचना है बच्चों, मार्च तो है ही मंथ। 1942 समझ में आई? 1942 में वो आए थे इंडिया में। नाउ क्लियर, फाइन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च्ड? इंडिविजुअल सत्याग्रह जो भी हमने बात की, सिविल डिसोबीडियंस वाली, वो ये जो सत्याग्रह थी, इंडिविजुअल सत्याग्रह की हम बात करें, गांधी जी के द्वारा जो लॉन्च हुई थी उसकी बात नहीं कर रहे। सो ये कब लॉन्च हुई थी? कांग्रेस ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च हुई थी? 1942 में, 1938 में, 1940 में, या फिर 1950 में? कंफ्यूज मत होना, आपकी बुक में क्लियर कट दिया हुआ है, इंडिविजुअल सत्याग्रह ईयर दिया हुआ है 1940, सिंपल सा वहां पे लिख के आना 1940, एकदम भी कंफ्यूज मत होना। आपके बुक में दिया हुआ है, हेडिंग में दिया हुआ है इंडिविजुअल सत्याग्रह कॉमा 1940, सिंपल, समझ में आई? So guys, with this we have reached to the end of the video. मुझे I just hope कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे, प्लस I just hope कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग द क्वेश्चन जल्दी से जल्दी इंप्रूव हो, एंड जितनी जल्दी इंप्रूव होगी विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस मोर एफिशिएंटली। तो चलो, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको स्माइली नहीं दी थी, so we'll give you a smiley. So this smiley is for all of you. And thank you for watching this video. वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो. So once again students, thank you so much for watching this video.